ظہیر بھائی کا نام ہم سبھی جانتے ہیں، اردو پڑھنے والے اس وقت ہندوستان میں سبھی لوگوں میں یہ نام جانا جاتا ہے، اس لیے بنا کسی تبدیل کے میں ظہیر بھائی سے یہ گزارش کرتا ہوں۔ معزز سامعین، جب سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی کہ 1,20,000 کروڑ کے وقف پراپرٹیز پورے ہندوستان میں ہیں، تو ہم لوگ نے آندھرا پردیش کے خاص طور پہ حیدرآباد شہر کے اطراف وقف پراپرٹیز کے بارے میں کچھ سروے کرا اور اس کے اوپر 3 اردو اخبارات، سیاست، رہنما اور ان سے کے جوائنٹ کیمپین کا۔ ہم دیکھنے کو ایک دوسرے کے کمپیٹیٹر ہیں، مگر وقف پراپرٹیز سیو کرنا میں سمجھتا ہوں ہر ایک کا فرض ہے، تو اسی لیے ایک جوائنٹ کیمپین شروع کریں ہم لوگ۔ یہ کیمپین میں یہ بولے ہیں کہ اتنے لاکھوں کروڑ کی وقف پراپرٹیز ہیں اور اس کا جو حشر ہو رہا ہے۔ اور ایک اچھا آفیسر آیا تھا وقف بورڈ میں، شفیق الزمان، تو وہ پہلا آدمی تھا جو وقف سروے رپورٹ کی پوری کمپیوٹر پہ کر کے انٹرنیٹ پہ ڈال دیا۔ جسی کو بھی وقف پراپرٹیز کے بارے میں کچھ معلومات ہونا، وہ آفیسر کا بھی ٹرانسفر ہو گیا۔ وقف سروے نمبر 1 کے حساب سے آندھرا پردیش میں 38,000 پراپرٹیز ہے، وقف سروے نمبر 2 کے حساب سے 70,000 ہے، جو صرف ایریا ہے اس کا 6 لاکھ کروڑ۔ یہ آندھرا پردیش کا معاملہ ہے، جبکہ پورے ہندوستان میں سچر کمیٹی کے حساب سے 6 لاکھ ایکڑ وقف پراپرٹیز ہے۔ ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ وقف پراپرٹیز کہاں کہاں ہیں، خاص طور پہ بڑے وقف پراپرٹیز کے بارے میں معلومات کرنا، اور اس کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت جانکاری دیں گے آپ کو کہ وقف پراپرٹیز جو آؤٹر رنگ روڈ ہے حیدرآباد میں، ایک اینڈ شروع ہوتا اس کا شمس آباد ایئرپورٹ پہ ختم ہوتی ہے، ایک اینڈ ہائی ٹیک سٹی کے آگے سے شروع ہوتا ہے۔ اگر یہ روڈ جو ہے 158 کلومیٹرز کی ہے، اس پہ 40 کے قریب بڑے وقف پراپرٹیز ہے، اور یہ وقف پراپرٹیز کی جو ویلیوز ہے اس کے بارے میں کچھ بولنا چاہوں گا میں۔ ہائی ٹیک سٹی سے وقف پراپرٹیز شمس آباد ایئرپورٹ تک جو ORR آ رہی ہے، اس میں 100 کروڑ روپے پر ایکڑ ہے، اس کے سے 5 کلومیٹر گئے تو 30 کروڑ روپے پر ایکڑ ہے، اس سے آگے گئے تو 15 کروڑ ہے، اس سے آگے گئے تو 3 کروڑ ہے۔ ایسا ہی آؤٹر رنگ روڈ پہ ہزاروں ایکڑ ہے، 18,900 ایکڑ وقف پراپرٹیز ہے۔ اگر آپ اس کا ایوریج بھی لے لیے کہ ایک جگہ 100 کروڑ میں بکری ہے، جو لوئسٹ کاسٹ ہے 3 کروڑ، ایوریج کاسٹ 15 کروڑ، بیچ میں 30 کروڑ سے بھی بکری ہے، اگر ایوریج کاسٹ 11 کروڑ بھی رکھے تو یہ وقف پراپرٹیز تقریباً 2 لاکھ کروڑ کے ہوتے ہیں۔ آپ ایک چھوٹا ایگزامپل دوں گا، ایک بیک فار سیل آف وقف لینڈ 60 لاکھ پر ایکڑ ہوتی ہے، جبکہ گورنمنٹ آفیشلی یہ بیچتی ہے 100 کروڑ روپے، اور اس کے بعد کی لینڈ ہے 60 لاکھ پر ایکڑ بیچی جاتی ہے۔ یہ کس کو بیچی جاتی ہے؟ ایک چھوٹا معاملہ جو گورنمنٹ ڈیل کر رہی ہے وہ ہے حیدرآباد ایئرپورٹ کا ہے۔ یہاں پہ 1100 ایکڑ وقف لینڈ گورنمنٹ ایکوائر کر لیتی ہے، اور ان کے پاس کورٹ میں یہ پریزنٹیشن دیتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس ڈاکیومنٹ نہیں ہے، 1956 سے پہلے ہم اس کا پیمنٹ کریں، آج تک کوئی نہیں۔ یہ 1100 ایکڑ میں سے گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ میں مسلمان سے ہمدردی ہے ہمیں، اور ہم 30 ایکڑ یہ پراپرٹی مسلمانوں کو واپس دیتے ہیں، جس کی ویلیو گورنمنٹ کے حساب سے 7 کروڑ پر ایکڑ، 7 کروڑ انٹو 11 30 ایکڑ بولے تو 210 کروڑ کی بات ہوتی ہے، جبکہ 1100 ایکڑ کو آپ ملٹیپلائی کریے 7 کروڑ سے تو 7,700 کروڑ۔ کیا ہمیں 7,700 کروڑ کے لیے لڑنا چاہیے گورنمنٹ سے، یا 210 کروڑ؟ بہت سارے مسلمان رہنما یہاں پہ گورنمنٹ کی ستائش کرے، خاص طور پہ علماء حیدرآباد کے، کہ ایسی گورنمنٹ، ایسے چیف منسٹر ہم نہیں دیکھے۔ یہ اگر یہی علماء سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کی پراپرٹی 1100 ایکڑ گورنمنٹ لے لیتی ہے اور اس کے بعد اس کو واپس 30 ایکڑ دی، تو آپ کا عمل یہی رہے گا؟ تو یہ بہت ناانصافی چل رہی ہے۔ دوسری مثال دوں گا کہ درگاہ حسین شاہ ولی کی 1654 ایکرز ہے، یہاں کی 30,000 کروڑ کی ہے،
चाहे वो तेलुगु देशम गवर्नमेंट हो या कांग्रेस गवर्नमेंट हो, ये सब प्रॉपर्टीज कोई गरीबों को नहीं दी हैं, बल्कि एमआर प्रॉपर्टीज जो दुबई के शेख है आईएसबी को दिए हैं। आईएसबी को कोई जरूरत नहीं है फ्री में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लेने, उर्दू यूनिवर्सिटी है, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस है, विप्रो है, ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज को। इसमें से एक छोटी और एक प्रॉपर्टी जो 100 एकड़ है लैंको, जो लैंको राजगोपाल कांग्रेस के एमपी है, उनको दी गई है प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी का मामला ऐसा है कि गवर्नमेंट को शुरू से ही मालूम था ये वक्फ प्रॉपर्टी है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ लैंड इसका रखा 60 लाख रुपए पर एकड़ और कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट रखे 3,67,000, इसलिए कि कल के दिन वक्फ बोर्ड अगर केस जीतेगा तो वक्फ बोर्ड को 60 लाख पर एकड़ मिलना और एपीआईसी को बाकी के। ये जब हाई कोर्ट सिंगल बेंच इसको स्टे दे दिया कि कंस्ट्रक्शन रोक देना चाहिए, तो पॉलिटिकल पार्टीज लैंको के वक्फ के जमीन के वक्फ के एडवोकेट्स को मिला के पॉलिटिकल प्रेशर में ये कहे कि कैसा भी पैसा एपीआईसी के पास है, जिस दिन केस जीतेगा वक्फ बोर्ड वो वापस कर दिया जाएगा। छोटी एक फाइनेंशियल डिटेल्स दूंगा आपके। 100 एकड़ से कितना पैसा कमा सकता है लैंको राजगोपाल जो कांग्रेस का एमपी है। कॉस्ट ऑफ लैंड 100 एकड़ जमीन है, कॉस्ट ऑफ लैंड 60 लाख पर एकड़, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट 3.6 करोड़, टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड 427 करोड़ है। आप सोचिए कि एक मुसलमान होने के नाते हमारा घर कितने स्क्वायर फीट का होता है, 500, 800, 2000, 5000, 10,000, 20,000, मगर यहाँ पे 100 एकड़ पे 3 करोड़ स्क्वायर फीट के रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बनते हैं, जिसकी वैल्यू है 4,500 रुपए पर स्क्वायर फीट। 13,500 करोड़ में लैंको वाले प्रॉपर्टी पूरी बेचते हैं और यहाँ पे 25 लाख स्क्वायर फीट कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाई जाती है, जिसको 6,000 पर स्क्वायर फीट से बेचा गया 1,500 करोड़ रुपए में, और वहां पे गोल्फ है, अदर फैसिलिटीज 500 करोड़, जबकि उनका टोटल सेल कंसिडरेशन 15,500 करोड़ रुपए है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 5,500 करोड़ है। लैंको वाले 10,000 करोड़ प्रॉफिट कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड को देने की बात हो रही है कि 60 करोड़। आप ये सब सोचिए कि आपकी अगर ऐसी प्रॉपर्टी रही थी तो ऐसे बिजनेस डील कर सकते थे। ये गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज बेच के मुसलमानों को नंगा कर रही है और अपने पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों को फायदा पहुंचा रही है। एक एफिडेविट दूंगा मैं आपको कि कैसा गवर्नमेंट हमारे को मिसयूज कर रही है कोर्ट के जजमेंट्स के। लैंको की जमीन पे चीफ सेक्रेटरी एफिडेविट देते हैं, इवन ए मॉस्क कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू लैंड एक्विजिशन, सो देयर इज नो इम्यूनिटी टू आइदर दरगाह और वक्फ लैंड बीइंग एक्वायर्ड बाय द स्टेट, सो द रूल वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। इसमें केस का हवाला देते हैं, बाबरी मस्जिद की जमीन जब एक्वायर कर सकते हैं तो ये जमीनों का क्या मामला है। यहाँ पे एक ऑफिसर 12-15 महीने से ज्यादा नहीं रहता। अगर एवरेज लेंगे आप तो एक ऑफिसर का ट्रांसफर हो जाता 7-8 महीने में। क्यों, क्या रीजन है? हुदा साहब 15 महीने, शफीकुज्जमान 6 महीने, एसएम साहब 11 महीने, आरिज अहमद 5 महीने, हसन अली बेग 12 महीने, अहमद अली खां 18 महीने, छाया रतन 12 महीने, देवकांत बरोहा 2 महीने, और जबकि एक जो सुब में करप्ट ऑफिसर है शेख मदार, वो आज तक कंटिन्यू हो रहा है। छाया रतन और देवकांत बरुआ और आरिज अहमद, शफीकुर रहमान के बारे में ये कहूंगा मैं कि ये ऑफिसर्स ऐसे ईमानदार थे, ये चाह रहे थे कि वक्फ बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी वापस हो। आज हैदराबाद की तरफ 2 लाख करोड़ के वक्फ प्रॉपर्टीज है और पूरे आंध्र प्रदेश में 3 लाख करोड़ से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज है। हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट का माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट है, जिसमें हजारों बच्चों की स्कॉलरशिप दी जा रही है, गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि फ्री इंजीनियरिंग, मेडिसिन, वाकई में सही है, 4% रिजर्वेशन दिया गया है, फ्री मेडिकल वालों को क्लासेस दी गए हैं, उसकी हमारे को ज्यादा अहमियत है यह हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज को सेव करना, जिसकी वैल्यू 3 लाख करोड़ है। पूरे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट सबसे ज्यादा है आंध्र प्रदेश में, कोई शक की बात नहीं है, यह हकीकत है। मगर क्या
गवर्नमेंट के क्लेम्स है कि मुस्लिम फ्रेंडली गवर्नमेंट है, 4% रिजर्वेशन दी, सामने से तो दिखने को 4% दी ज़रूर, बच्चों की स्कॉलरशिप मिली ज़रूर, मगर हकीकत में देखिए कि हमारे लाखों करोड़ के प्रॉपर्टीज़ तबाह हो रहे हैं। इसमें और एक दो तीन चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि ये सिर्फ हैदराबाद में नहीं हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान भर में वक्फ प्रॉपर्टीज़ की तबाही, क्योंकि आज गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, इसीलिए ये पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज़, चाहे वो आंध्र प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र का केस देखिए, मुकेश अंबानी $2 बिलियन का घर बना रहा है, 10,000 करोड़ का घर बना रहा है, और वो जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को खरीदे हैं वो 16 लाख में खरीदे हैं। कहाँ का इंसाफ है ये? $2 बिलियन 10,000 करोड़ का घर है और हमारे वक्फ बोर्ड को मिलती है 16 लाख, जिस पे 3 हेलीपैड्स है, 4 फ्लोर तो सिर्फ पार्किंग के लिए यूज होती है। छोटी और एक मिसाल दूंगा, वक्फ बोर्ड में बेंगलोर के रहने वाले हैं तो आपको मालूम होगा, एक 5 स्टार होटल सबसे अच्छी बेंगलोर की है, विंडसर मैनर, उसको 12,000 माहाना किराया दिया जा रहा है, पर टोटल जो डील हुई 25 लाख में हुई। फतेहपुरी मस्जिद में भी दिल्ली की वक्फ प्रॉपर्टीज है। आज दिल्ली की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी वक्फ प्रॉपर्टीज पे, इंक्लूडिंग राष्ट्रपति भवन भी वक्फ प्रॉपर्टीज पे है, क्योंकि दिल्ली में 150 साल पहले मुसलमानों का जवाल आया था, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। छोटी और एक मिसाल दूंगा, औरंगाबाद में वहां की एक वक्फ प्रॉपर्टी 8 करोड़ में बेची जाती है, चीफ मिनिस्टर के देशमुख के भाई खरीदते हैं, जबकि उसकी वैल्यू है 60 करोड़। आखिरी में खत्म करने से पहले ये बोलूंगा कि कैलकाटा में एक वक्फ प्रॉपर्टी है 100 एकड़ के करीब है, जिसमें शहीद टीपू सुल्तान के औलाद के वास्ते ये बनाई गई थी। आज वो प्रॉपर्टी का किराया महाना 10,000 रुपए था। जब ये वक्फ की मुहिम शुरू हुई तो 5 लाख या 6 लाख हो गया है इस वक्त। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि टीपू सुल्तान के 3 पड़पोतों में से 2 पड़पोते वो क्लब में बायरे का काम कर रहे हैं और एक रिक्शा चला रहा है। क्या हमारे कौम इसीलिए पैदा हुई रिक्शा वाले, ऑटो वाले बनने के? क्या ये हमारा हक नहीं है कि वक्फ प्रॉपर्टीज जो हमारे आबा अजदाद छोड़ के गए हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं है, उसके वास्ते फाइट करना चाहिए हम लोग। पंजाब गवर्नमेंट में, पंजाब में तो हजारों मसाजिद में डेयरी फार्म खुले हुए हैं। तो ये वक्फ प्रॉपर्टीज का एक छोटा एग्जाम्पल हिंदुस्तान के डिफेंस बजट से भी देता हूं। मैं हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ 1 करोड़ के करीब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के में एम्प्लॉयज है और 1 करोड़ से ज्यादा रिटायर्ड एम्प्लॉयज होंगे। वो सब का बजट मिला है तो 1,66,000 करोड़ है। सिर्फ हैदराबाद की तरफ 2 लाख करोड़ के वक्फ प्रॉपर्टी से। आप ये सोचिए कि हम 177 करोड़ गवर्नमेंट के बजट के वास्ते उनके सामने चिप्पे लेके भीख मांगना चाहिए या हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज को सेव करने के वास्ते फाइट करना चाहिए। एक छोटा इकदाम है। मैं शुक्रगुजार हूँ सियासत के एडिटर साहब जाहिद साहब का, मुंसिफ के एडिटर खान लतीफ खान साहब का, रहनुमाए दक्खन के वखार साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये काम तीनों अखबार मिलके शुरू करे हैं और तीनों अखबार के मुदीरान की दिलचस्पी की वजह से ये काम इतना आगे बढ़ा। हर एक मुसलमान, हर एक हिंदुस्तानी, क्योंकि हमारा मुल्क जमहूरियत है और हमारा यकीन है कि यहाँ की कोर्ट पे, यहाँ के सिस्टम में, मगर एक बात बोलूंगा मैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज का जब से मामला आया, जब से ये एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही कि ये हिंदुआ या हिंदू सियासतदान तबाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे मुसलमान सियासतदान, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे तेलुगु देशम के हो, चाहे MIM के हो, या कोई मुस्लिम सियासी जमात के हो, या ऐसे लोग हैं जो मुतवल्ली बने हुए हैं, जो दरगाहों के सज्जादे बने हुए हैं, ये लोग भी उतने ही जिम्मेदार है, क्योंकि ये लोग सब एक्ट कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टीज के पिम्प्स की वैसा एक्ट कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आज हिंदुस्तान के मुसलमान, चाहे वो हैदराबाद के हो, आंध्र प्रदेश के हो, हिंदुस्तान के, उठ बैठ के ठहरेंगे तो हमें को ये पूरे प्रॉपर्टीज वापस मिलेंगे और हम इसका हमारी आने वाली जनरेशन को फायदा पहुंचा सकेंगे। और हम लोग को सबको डरना चाहिए कि हमारी भी पूछ होंगी एक दिन अल्लाह के पास। जब इतने लाखों करोड़ों के प्रॉपर्टीज थे तो अल्लाह आप लोगों को किस लिए भेजा था और क्या करने के लिए। अगर आंध्र प्रदेश की वक्फ प्रॉपर्टीज हम आंध्र प्रदेश के मुसलमानों में डिवाइड करें तो हर एक बच्चा जो पैदा हो रहा है 12 लाख की प्रॉपर्टी लेके पैदा हो रहा है, जबकि हम फकीर बने हुए हैं, हम भीख मांग रहे हैं पूरे
ہندوستان. Thank you very much.